ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਬਿਸਰਿਆ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਅਬਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਇਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ
इक खेल रचाया, कोय न किसही जिहा उपाया। आपे फर्क करे वेख विगसै, सब रस देही माहे। वाजै पौण तैं आप बजाए, शिव शक्ति देही मह पाए। गुर प्रसादी उल्टी होवै, ज्ञान रतन शब्द लाहे। अंधेरा चानण आपे किया, एको वरतै अवर न बिया। गुर प्रसादी आप पछाणै, कमल बिगसै बुध ताहाहे। अपनी गहन गत आपे जाणै, होर लोक सुन सुन आख वखाणै। ज्ञानी होवै सो गुरमुख बूझै, साची सिफत सलाहे। अपनी गहन गत आपे जाणै, होर लोक सुन सुन आख वखाणै। ज्ञानी होवै सो गुरमुख बूझै, साची सिफत सलाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हाजरियां भर के सत संगत करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। सहबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपणियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਇ ਨ ਕਿਸਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1056 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 1057 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਕੀ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੇਤਰ ਨੱਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ, ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ,
किसे जिहा किसे कोई भी पैदा नहीं किया है। सारे वक्रे वक्रे रूप रंग दे हन। हुण इहदे च केवल मनुख नहीं आउंदे, इहदे विच पशु भी आउंदे ने, पंछी भी आउंदे ने, कीड़े मकोड़े भी आउंदे हन। 84 लख जूनां आउंदियां ने। इसे तरह ही भगत कबीर, भगत रविदास साहिबान शब्द आपां पढ़दे हां। भगत जी नूं पुछो, भगत जी कहंदे जीव दी बनतर किवें बणी है, किवें जीव दा संसार विच आउणा होया। कहंदे की है शरीर? कहंदे ने जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी वसै विचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरबर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। कहते ने तेरा वजूद इस तरह का है, तेन काहदे माण करदा जीव। परमात्मा ने एक खेड बनाई, तैनू संसार च पैदा किया, तैनू जिंद जान देना कीती है। पर जिस शरीर उत्ते तू माण करदा, अपने गुणा उत्ते माण करदा है, तैनू पता है शरीर किवें बनिया? शरीर है की है? कहते जल की भीत, भीत का अर्थ है कंध। पानी की कंध कदे थिर नहीं रह सकती है, ते इस जल की भीत नूं पवन का थंबा, पवन की है? साडे श्वास। श्वास जिहड़े ने हवा वाली थंबी गुरु सवार जिहड़ी है, शतीर है, ये सदी भी नहीं रह सकती है। ते इस तरह जदों तक साडे साह चलते हैं, श्वास चलते हैं, उदों तक आपां जिउंदे हां। ते हड्डियां मास नाड़ियां दी ये सारी मिझ एक थां ते कत्तर करके ते परमात्मा ने इस प्रकार ते गुरु सवारियो इस जीव का शरीर बना दिता। रक्त बूंद का गारा, माता दा रक्त पिता दा बिंद, ये गारा बना के चढ़ाई करना कीती है। तो इस जिहड़ा जीव रूपी पंछी रह रहा, रहन लई आलना बना दिता परमात्मा ने। जिवें एक पंछी दरख्त उत्ते बैठदा, उडारी मार के दूजे उत्ते चलिया जांदा, फिर तीसरे उत्ते चलिया जांदा है। इसे तरह समय समय अनुसार जिथे अंतम समय जीव की बिरती रह जाती है, उहदे मुताबक जीव नूं अगला जिहड़ा जन्म है वो प्राप्त हो जाता है, अगला शरीर मिल जाता है। सफर दे विच है। सतगुरु महाराज बचन करते ने, कहते है सारी उस परमात्मा की खेड है। इकना दे उत्ते वाहिगुरु ने ऐसी बख्शिश की, मनुखा जन्म बख्शिया। मनुखा जन्म प्राप्त करके वो दिन रात उस प्रभु की इबादत करते हैं, प्रभु के गुणों का गैन करते ने, अपने मनुखा जन्म सफला कर लेंदे हैं। एक ऐसे हैं जिन्होंने मनुखा जन्म तो मिल गया, पर अपने जीवन काल च वो कर्म नहीं कर सकिया जिहड़े कर्म करन दे नाल साडी प्रभु दे नाल परमात्मा नाल नेड़ता बननी सी। उन्हां कर्मां तो कोहां दूर हो गया, सारे ही धर्म तो उल्ट कर्म करता रहा। तिस जी सतगुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त नहीं कर सकिया, ना अमृत वेला संभालिया, ना अमृत बाणी नाल प्यार कीता। इंज ही अपने जीवन नूं व्यर्थ गवा लिया। ते कहंदे है सारी ये परमात्मा की खेड है। परमात्मा ने जगत रचिया, जगत रच के ये जीवां नूं कहंदे पैदा कीता। सच्चे परमात्मा ने ये खेल रचाया होया है। कोई न किस ही जिहा उपाया,
कोई किसे जिहा पैदा नहीं कीता है, सारियां विच फर्क कीता रखना कीता है। ते पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, आपे फर्क करे वेख विगसै, सब रस देही माहा है। कहते आप ही परिपूर्ण परमात्मा ने जीव पैदा करके इन्हां विच फर्क भी आवे पाया, ते इन्हां वल वेखदा, वेख के फिर विकसै खुश हुंदा है, क्योंकि उहदे बनाए हुए ये भांडे शरीर रूपी भांडे ने, खेडां खेड रहे हैं, ते सारियां देहियां दे विच उन्हें रस भी पैदा कीते हैं। ते उस तरह वो वाहिगुरू सारियां देहियां दे विच आप है, ते उन्हें रस भी उहदे पैदा कीते हुए हैं। ते इस तरह वो वाहिगुरू एक खेडां खेड रहा है। आपां भट्ट साहिबान जी दे वचन पढ़ते हैं। भट्ट जी कहते ने, बाहो बाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया घट घट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबै विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। गुरु साहिबान जी बख्शिश करते हैं, कहते भाई ये सारा वाहिगुरू का तमाशा है, वाहिगुरू की खेड है। उन्हें आप ही पुरुष पैदा किए, आप ही इस्त्रियां पैदा कीते हैं, आपे जल आपे थल थम्मन, आप ही गुरु से जल पैदा किया, ते आप ही उन्होंने रोकण वास्ते थम्मी लाने वास्ते परमात्मा ने बड़े बड़े पहाड़ बना दिते। होर गुरु सवरे इहो जिहियां अनेकां प्रकार दीयां खेडां उस मालक ने रचना कीतियां ने। पर जो कुछ आपां देख रहे हैं सारा उस मालक वाहिगुरू का पैदा किया होया है, ते मालक वाहिगुरू ही सारियां दे विच समाया होया है। उन्हें ही वो वाहिगुरू दियां ये सारियां ये खेडां हन, रस भी आप पैदा करने वाले ने, ते गुरु सारियां देहियां दे विच वो वाहिगुरू आप ही है। जिवें आपां पातशाह दे वचन पढ़ते हैं कि आपे रसीया आप रस, आपे रावण हार, आपे होवै चोलड़ा, आपे सेज पधार, रंग रत्ता मेरा साहिब, रब रहा भरपूर। कहते आप ही रस मानन वाला, आप ही रसीया है, रसां नूं पैदा करने वाला भी आप है। ते इस तरह उस मालक दियां ये सारियां खेडां ने। वाहिगुरू ने जीवां नूं पैदा करके ते जीवां दे विच आप समा गया। रस भी मालक ने आप ही पैदा कीते हन। इस तरह वो वाहिगुरू ये खेडां खेड रहा है। बाजै पौण तैं आप बजाए, शिव शक्ति देही मैं पाए। गुरु साहिबान जी अगली पंक्ति बख्शिश कर रहे हैं। कहते शरीर बना के वाहिगुरू ने अंदर कहते वाजै पौण, पौण बज रही है, हवा चल रही है। पौण की है साढ़े साह। कहते ये वाहिगुरू आप ही बजा रहा है। गिणती दे साह पाए हुए ने। जिन्ने उस मालक दे हुक्म दे विच आपां साह लैंदे आ ते हुक्म दे विच साडे स्वास जिहड़े ने वो रुक जांदे ने, खत्म हो जांदे ने। कहते ये वाहिगुरू ने आप ही पवन रूपी बाजा बजाना कीता। जिवें आपां गुरु साहिबान जी फरमान करते ने, कहते ने हर जीओ गुफा अंदर रख कै, बाजा पौण बजाया, बजाया बाजा पौण नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया,
गुरद्वारै लाए भावनीक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाओ नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा, जियो गुफा अंदर रख कै, बाजा पौन बजाया। इस तरह उस वाहिगुरु ने ये पौन बजाना की है, वो आप ही बजा रहा है। शिव शक्ति देही में पाए, बाजा पौन तो आप बजाए, शिव शक्ति देही में पाए। शिव की शक्ति किहड़ी है? माया। जिस माया नूं प्राप्त करके यह माया जित हार बिसरै, मोह उपजै भाव दूजा लै। पातशाह कहते ने वो माया कहते शिव की शक्ति जो है इस देही विच पा दिती। ते माँ जिथे परमात्मा वाहिगुरु आप इस देही दे अंदर बैठा होया गुप्त रूप दे विच, तो उत्थे मालक ने अपनी माया का पसारा कर दिता। ते जीव अपने इष्ट नूं, अपने गुरु नूं छड्ड के, परमेश्वर नूं छड्ड के इस माया दे विच ही गलतान हो जाता। सारी कहते प्रखेड परमात्मा दी है। आप ही कहते उस मालक ने ये खेड रचाई हुई है। इस तरह माया भी भाव आप पैदा करने वाला, जीवां नूं पैदा करके स्वासां रूपी पूंजी भी आप देने वाला है। इस तरह ये सारी शक्ति उस मालक ने पाई है। गुर प्रसादी उल्टी होवै, ज्ञान रतन शब्द ताहा है। सतगुरु जी फिर जिहड़ी ये माया है, जीव जिहड़ी परमात्मा ने आप पैदा की है, शिव की शक्ति जिन्होंने आख्या परमेश्वर की शक्ति, कि सतगुरु हर एक जीव उत्ते हावी हो रही है। कोई सतगुरु इहो जी ब्योंतबंदी भी है, इहो जिहा ढंग तरीका भी है, जिहदे राहीं इस माया उत्ते जीव की पकड़ मजबूत हो जाए, माया ये बस विच आ जाए। तो सतगुरु महाराज कहते हाँ भाई हो सकती है। वो जदों गुरु की प्रसाद किरपा दे राहीं, गुरु की साडे उत्ते प्रसाद किरपा होवेगी, रहमत होवेगी, तो फिर ये माया उल्ट जाएगी। भाव इस माया उत्ते तेरा कंट्रोल हो जाएगा। फिर इसे ही हिरदे रूपी घर दे विचों तैनू फिर तेरे हिरदे अंदर ज्ञान उत्पन्न पैदा होवेगा। वो ज्ञान जो गुरु का बख्शिश किया होया, जदों गुरु के ज्ञान की तैनू प्राप्ति होगी, तू आत्म अभ्यासी बन गया। इसे ही ज्ञान दे राहीं फिर तेरे अंदर रतन पैदा होणगे। गुरु रतन की है? गुरु का शब्द। गुरु के शब्द रूपी रतन तेरे हिरदे अंदर पैदा होणगे। उहदे राहीं ही फिर तेरा जीवन का जिहड़ा निर्वाह वधिया बनेगा। क्योंकि गुरु की किरपा तो बिना गुरु सिर कुछ भी नहीं हो सकता है। जदों गुरु रहमत नहीं करता, किरपा नहीं करता है, तो उदों तक आप बख्शिश के पात्र नहीं बन सकते। देखो जदों गुरु रहमत करता ना, बड़े बड़े जिहड़े बुजदिल डरपोक होवे, जिन्हां विच जूझण दी गुरु शक्ति ना होवे, बड़े बड़ियां नूं सतगुरु जी किरपा करके जिवें पहाड़ चट्टान दी ने, बड़े बड़ी चट्टान दी ने बना दिंदे ने, बहादुर बना दिंदे ने। जिवें एक परिवार कहते अपना डोला लैके जा रहे, नवां ब्याह होया, बरात आ रही है, डोलियां दे विच उदों लड़कियां नूं लिजाया जांदा सी, ते रास्ते दे विच एक पठान 3-4 पठान इकट्ठे होए, उन्होंने वो डोला खोलिया। हरी सिंह नलू के समय की गाथा है। कहते डोला खोया, वो बड़ी तेजी नाल दौड़ के गए ने। कहते हुण तां साडी केवल खालसा पंथ ही मदद कर सकता है,
सरदार हरी सिंह नलूए को जो जाके बेनती की कि देखो जी फलाने पठाणा ने साडा डोला खोह लिया, मेरी इस्त्री नूं लै गए, नवां नवां मेरा ब्याह होया, हाले मैं घर नूं जाना जा रहा सी ते रस्ते विच खोना कीता। सरदार हरी सिंह नलूआ जी पुछ सुन, कहंदे किन्ने आदमी किन्ने बंदे सन? कहण लगे वो 4 सी, हट्टे कट्टे। हट्टे कट्टे पठान 4, तुहाडी गिणती किन्नी सी? कहण लगे सी 50-60 बरात गई हुई सी। अगों हरी सिंह नलूआ कहण लगे एक पासे 4 होण एक पासे इन्नी गिणती होवे, फिर भी तुसी अपनी इस्त्री नूं बचा नहीं सके। कहण लगे चलो तुसी खालसे दी शरण विच है, खालसे दा बिरद है, जो शरण आवे तिस कंठ लावै। कहण लगे खालसे नूं हुक्म कर दिता गुरु सवारियो, जदों हले 1 घंटा शादी नूं होया सी, कहते रस्ते दे विच जाके उन्हां पठाणां नूं घेरिया, खालसे ने हमला किया, हमला करके पठाणां दा खात्मा कर दिता। उस इस्त्री नूं वापस लैके आए, कहण लगे लै भैणे तूं अपने परिवार जाना कर, ये तेरा घर वाला, ये तेरे नाल तेरे बराती गए सी, नाल ये सारे रिश्तेदार ने, ते बीबी दा नाम है छन्नो, बीबी छन्नो। ते कहण लगी सरदार हरी सिंह नलूआ जी नूं कि नहीं, जेड़ा मेरा 1 घंटा मेरी शादी नूं होया, ब्याह होया नूं होया है, जेड़ा मेरी हुण मदद नहीं कर सकिया, वो सारी जिंदगी मेरी मदद किवें करेगा? सारी जिंदगी मेरी मदद किवें करेगा? इस करके मैं नहीं जाना, अज तो बाद मैं भी खालसे दल विच शामिल होवांगी। जिवें गुरु का खालसा लोड़वंदां दी सहायता करदा है, गुरु का खालसा जिहड़े गरीब मजलूम ने उन्हां दी मदद करदा है, ते मैं भी गुरु के खालसा फौज शामिल होके जड़ियाँ बहु बेटियां ने, लड़कियां ने, उन्हां दा मैं उन्हां दी मदद करांगी, मैं जूझांगी। ते छन्नो तो मैं हुण अमृत छक के अमृत छकना चाहुंदी हाँ, मैं देखना चाहुंदी हाँ कि जिहड़ा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने खंडे बाटे दी पौल अपने खाल सिखां नूं छकाना की, तो उस अमृत विच है की है जिन्होंने छक के एडी बड़ी दलेरी पैदा हो जाती है। कहते ने फिर उदों इस बीबी छन्नो ने अमृत छकिया, छन्नो तो फिर ये हर शरण कौर बनी, नाम रखा गया हर शरण कौर। जदों फिर समा लंघिया, अफगानियां ने गुरु सवारियो हमला किया, ते गुरु का खालसा जिहड़ा सी दरा खैबर दे जिहदे कोल गुरु सवारे उस किलियां दे विच बैठे हुए ने, मोर्चा लग्या होया है, हमला कर रहे ने। सरदार हरी सिंह नलूआ जी बीमार ने ते गुरु का खालसा जूझ रहा। कहन लगे कि हुण पठाणा की गिणती जिहड़ी बहुत ज़्यादा अफगानियां दी, जे असी इस तरह हुण हमला किया, साडे उत्ते हमला कर रहे ने, असी किले उत्ते उन्हां नूं काबज तां नहीं होण देंगे, पर शहीद हो जावांगे। शहीद होण तो बाद ये जिहड़े लोग ने ये किले उत्ते काबज होणगे, पर जे सरदार हरी सिंह नलूआ तक खबर पहुँच जाए ना जो बीमार ने, फिर ये पठान अगे नहीं वध सकते। इन्ना डर सी सरदार हरी सिंह नलूआ जरनैल का कि जेकर वो सरदार हरी सिंह नलूआ तक एक कोई चिट्ठी पहुँचा दे, खबर पहुँचा दे, तो हरी सिंह नलूए का इन्ना डर खौफ है कि ये पठान पिछे भज जाणगे। हुण सवाल ये पैदा हुंदा सी कि सरदार हरी सिंह नलूआ का खबर पहुँचावे कौन? आले दुआले दा पठाणा का घेरा है, पठाणा का घेरा, ते हरी सिंह नलूआ जी बीमार पे हुए ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਛੰਨੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੰਨੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜਾਈ, ਇਹਨੇ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਭੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ, ਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ, ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਝਦਲ ਡਰਪੋਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਛੰਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਛੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆਪੇ ਕੀਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ, ਇਹ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
दिन भी उहदा पैदा कीता ते रात भी उहदा पैदा कीती हुई है। गुरु कहते गो एको वरत है अवर न बीरा, हनेरे दे विच अज्ञानता दे हनेरे विच भी परमात्मा आप ही वरत रहा। जो ज्ञान हुंदा है जीव नूं उदों भी वाहिगुरु उत्थे ही वरतदा है, ते वाहिगुरु तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। एक मालक वाहिगुरु ही सारियां थावां ते वरत रहा है। गुर प्रसादी आप पछाणै, कमल बिगसै बुध ताहा है। गुरु दी प्रसाद किरपा गा बार बार पातशाह ने गुरु दी प्रसाद किरपा की गल की है, क्योंकि सतगुरु का समझाने का एक तरीका है कि गुरु की किरपा तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। जे जीवित है अपने आप की पहचान करनी है, फिर तू गुरु की प्रसाद किरपा का पात्र बनना कर। गुरु की किरपा कदों हुंदी है? जदों असी गुरु दे हुक्म अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करन लग जाइए। जदों आपां गुरु साहबान ने जो सानू उपदेश बख्शिया उहदे मुताबिक आपां चलीए, तो गुरु फिर खुश हुंदा कि मेरा सिख है, मेरे बचनां नूं मनदा है, तो मैं इहदे उत्ते किरपा कर, रहमत करा। पर माफ़ करना गुरु सवारे साडी हालत इहो जी हो गई है कि आपां अपने आप नूं गुरु दे सिख अखवाउंदे हां, पर जो गुरु साहबान दसी हुई रहत मर्यादा है उहदे मुताबिक आपां अपने जीवन नूं बतीत नहीं कर रहे हैं। गुरबाणी विच तां पातशाह ने ये बचन कर दिते, कहंदे ने उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निभै सो सिर कप उतार। जो सिर साईं ना निभै सो सिर कीजै काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधे थाए। सतगुरु महाराज ने ये वचन कीते ने बाबा फरीद साहबान जी कि सुबह का अर्थ है अमृत वेला, प्रभात। प्रभात वेले उठना, उठ के की करना? नाम बाणी का अभ्यास करना, उस साईं नूं सजदा करना है। जेकर आप इस समय की संभाल करते हैं, अमृत वेले उठ के नित का नियम निभाते हैं, फिर तो साडे उत्ते गुरु की किरपा परत रही है। पर माफ़ करना जे आपां बाणा पहनिया होया ते अपने आप नूं गुरु के सिख कहाउंदे, पर रहत विच परपक्क नहीं, कदे जपजी साहिब दा पाठ नहीं कीता, नेतरें दा दूर दी गल है, बाणी तो कोहां दूर रह गए, फिर गुरु की किरपा दे आपां पात्र नहीं बन सकांगे। गुरु उदों खुश होवेगा जदों किसी आपां दुकान उत्ते जाइए, सौदा खरीदते हैं, साजो समान खरीदते हैं, आपां माया देंदे हैं, भेटा दित्ती आ माया दित्ती जाती है, तो माया दे के फिर सौदा चुकते हैं, तो गुरु के दर ते भेटा दित्ती जाती है। जिथे आपां दसां नोहां दी किरत दे विचों तिल फुल भेटावां गुरु के खजाने विच पाउंदे हैं, उत्थे सतगुरु महाराज वो भेटा लैंदे ने, प्रेम की भेटा। जदों प्रेम के सहित आपां सतगुरु महाराज का जस करिए, बाणी नूं पढ़ीए, अमृत वेले उठ के गुर मंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करिए, फिर गुरु सवारे गुरु साडे उत्ते प्रसन्न हुंदा, खुश हुंदा है, ते गुरु कहंदा कि मेरा सिख है, मेरे हुक्म की पालना कर रहा है, शुक्र कर रहा। तो जिस घर दे विच अमृत वेले उठ के नाम बाणी का अभ्यास शुरू हो जाता है, तो उस घर दे विच सच जाणिओ गुरु नानक की किरपा वरतदी है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਵ ਹੈ, ਨੀਂਵ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਰੁੱਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਬੁੱਧ ਤਾਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਲ ਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਵਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਤੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਣਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਵਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਕਲ, ਜਿਸ ਅਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਅਕਲ ਫਿਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਤੇ ਮਾਣਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਣ, ਗਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਧੀ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਣ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੈ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ।
जो परमात्मा की बनाई हुई गत मर्यादा, जो वाहिगुरू की जो अकल है, बुद्धि है, उहदे बाबत परमात्मा आप ही जान सकता है। जेकर कोई आखे ना कि असी परमात्मा के गुण गैण कीते ते परमात्मा के गुणां नूं आपां समझ गए, परमात्मा की जिहड़ी अकल है उहदे उत्ते पकड़ मजबूत कर ली, तो सतगुरु कहते नहीं, जिन्नियां मर्जी आपां कोशिशां कर लीए, नाम बाणी का अभ्यास करते रहिए, पर सच जाणिओ परमात्मा का कोई हद बन्ना नहीं, आपां उत्थे तक पहुँच नहीं सकते। वो अपनी मत का आप मालक है, उहदे बाबत दस्सिया नहीं जा सकता है। कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो तो पातशाह कहते ने, आप अपनी बुद्ध है जेती, वारनत भिन पित भिन भिन तोहे तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। परमात्मा तेरा जो पसारा है ये जानिया नहीं जा सकता है। किस तरीके नाल आप जी ने संसार बनाया ये दस्या नहीं जा सकता है। जिन्नी कु आप जी ने किसी नूं अकल बख्शिश की है, अपनी अपनी मत अनुसार सारे तुहाडी सिफत कर रहे, वडियाई कर रहे हैं, पर कोई इहो जिहा जीव नहीं जिहड़ा आख दे कि परमात्मा की जिहड़ी बुद्धि है, परमात्मा की अकल है, उहदे बाबत मैं जान लिया है। कहंदे नहीं, वो मालक आप जानन वाला है, होर कोई नहीं जान सकता। वाहिगुरू आप जानदा है, वाहिगुरू अपनी मत दी गुरु सरे वो आप ही जानदा। हाँ, जीवां नूं वो मत देण वाला। जिन्नी भी साडे कोल सूझ-बूझ है, सियाणप है, कुल दुनिया दी, कुल दुनिया की सियाणप एक पासे हो जाए, कुल दुनिया की अकल एक पासे हो जाए, वो सारा जोर अजमाइश करके देख लेना। जो दुनिया के लोगों की अकल मुक जाती है, मत मुक, सियाणप खत्म होंदी है, तो उदों फिर परमात्मा की सियाणप शुरू होंदी है। किड्डा वड्डा वो शक्ति है, उहदे बाबत गुरु सवारे बयान करके दस्या नहीं जा सकता है। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने, अपनी गहन गत आप जाना, अपनी बुद्धि अपनी गहन आप ही कहते परमात्मा जानदा है। होर लोग सुन सुन आख बखाना, जिहड़े बाकी लोग ने ना, वो तो सुनते ने एक दूजे तो, मैं तुहातों सुन लिया, तुसीं मेरे तो सुन लिया, सुन सुन के परमात्मा के गुणां दे बाबत बखियान करते हैं। सुन सुन के किसी ने रब नूं किस प्रकार का किस प्रकार दसना किया है, पर जिन्हें गुरु सवेरे देखिया होवे वो दस सकता कि परमात्मा किहो जिहा है, उहदा एक रूप नहीं है। सरगुण स्वरूप विच मालक दे अनेकां रूप रंग ने, ते निर्गुण स्वरूप विच कोई रूप रंग ही नहीं, पर आपां किवें बयान कर सकांगे। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो, पातशाह कहंदे ने, ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे, अकर्मं अभरमं अगंजे अलेखे। ते सतगुरु कहंदे फिर वो परमात्मा है की है, कहंदे गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निर्नामे अकामे। उसका स्वरूप यह है, जिहदा स्वरूप इस तरह का आपां किवें बयान कर सकते हैं कि परमात्मा का आपां हद बन्ना प्राप्त कर लिया। नहीं गुरु सवारिओ, लोग एक दूजे तो सुनते हैं, सुन के आपां अगे दस दिंदे आ, पढ़िया सुन किसी का लिखत पढ़ लई ते पढ़ के अगे सुना दिता, सुनने वाले अगे सुना दिता। इस तरह सिलसिला लगातार जारी है। पर जे कोई सोचे कि परमात्मा के गुणां नूं पढ़ के या सुन के आपां परमात्मा का हद बन्ना प्राप्त कर लवांगे, तो सतगुरु कहते नहीं, वो परमात्मा बेअंत है, उहदे बाबत दस्सिया नहीं जा सकता है। ज्ञानी होवै सो गुरमुख बूझै, साची सिफत सलाह है।
सतगुरु महाराज अगली पंक्ति बख्शिश करते, कहते भाई एक तरीका है उस गुरु के बाबत परमेश्वर के बाबत जानन दे लई। कहते जिहड़ा ज्ञानवान पुरुष होवे ना, गुरु के सन्मुख जान के, गुरु के सन्मुख हो के गुरमुख बन के उस गल नूं बूझै जान सकता है। उन्होंने फिर ये अकल आउंदी है। किहड़ी अकल आउंदी है कि भाई परमात्मा का हद बन्ना प्राप्त करने की कोशिश ना कर। जिहड़े काम लई तैनूं मनुखा देई मिली है ना, वो काम तू अपने जीवन च कर। वो काम किहड़ा है? साची सिफत सलाह है कि सच्चे परमेश्वर की सिफत कर, सच्चे परमेश्वर की सलाह कर, वडियाई कर। कहते जदों ये कर्म तू करन लगेगा, फिर कहते उस मालक नाल तेरी नेड़ता वधदी जाएगी। बाकी रही है गुरु सवारियो, जे उस मालक के गुणां का अंत पाना, अंत नहीं पाया जा सकता। अज तक जिन्ने भी संसार दे विच होए ने भगती मार्ग ते चलण वाले, उन्होंने जदों परमात्मा की इबादत की, बंदगी की, भगती मार्ग ते चलते गए, मंजिल तक पहुँचे, रब नूं प्राप्त किया। जदों उन्होंने पुछया गया कि तुसी रब नूं प्राप्त किया है, परमात्मा नाल एकमिक होए हो, कि परमात्मा किहो जिहा है, परमात्मा का हद बन्ना की है। उन्हां दे मुखों एक ही शब्द निकलदा, कहंदे वो परमात्मा बेअंत है, उहदा कोई हद बन्ना नहीं है। जिवें जदों जीव परमात्मा का नाम जपदा, उन्होंने पुछिए कि रस की है, जो रस आउंदा ना बंदगी पानी पढ़ के सिमरन करके, फिर उन्होंने पुछिए कि नाम जपदा, भाई तू नाम जप के तेन रस आ रहा, रस है की है? तो अगों गुरु सवारे वो तो बयान नहीं हुंदा कि रस है की है। उस रस नूं बयान नहीं किया जा सकता। वो वखरी गल आपां किताबां विच पढ़ के सुना दी एक दूजे नूं, वखरी गल है। पर उस अनुभव नूं प्राप्त करना, उस रस नूं मानना, ये किसी बिरले दे कर्मां च नसीब हुंदा है। गुरु किसी बिरले नूं मिलदा है। ते जिवें उस मालक का नाम जप के जो रस प्राप्त, रस नूं बयान नहीं कर सकता है, फिर परमात्मा दे बाबत वो किवें दस सके परमात्मा की है? परमात्मा किड्डा कोई बड़ा नहीं दस सकता। जो रस ही नहीं बयान होया तो वो मालक किड्डी वड्डी शक्ति होवेगी। तो सतगुरु कहते ने उस मालक दे दस्या नहीं जा सकता। हाँ कहते जीव तू अपने जीवन काल च गुरु पासों ज्ञान लैके गुरु दे सन्मुख हो के कहते भाई उस मालक नूं, मालक दी सिफत सलाह कर, मालक दी वडियाई कर। ज्यों ज्यों वडियाई करदा जावेगा, एक दिन समा आवेगा तैनूं रस प्राप्त होवेगा। फिर जी एक दिन समा आवे, रस मिल गया, परमात्मा दे गुण गा के उहदे च भेद होवेगा। थोड़े थोड़े गुण जिहड़े परमात्मा वाले गुण ने ना, ए जीव तेरे अंदर भी पैदा होणगे। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं,